हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 276 के बारे में। 276 क्या बताता है उसके बारे में आज मैं पढ़ूंगी। 276 बताता है 276 says about taxes on professions, trades, callings and employments। किसके बारे में? 276 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल सेज अबाउट टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में। नंबर 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 246। Number 1, notwithstanding anything in Article 246, no law of the legislature of a state relating to taxes for the benefit of the state or of a municipality, district board, local board or other local authority therein respect of professions, trades, callings or employments shall be invalid on the grounds that it relates to a tax on income। Number 2, provided that after a finance commission, Number 2, the total amount payable in respect of any one person. Number 2, the total amount payable in respect of any one person to the state or to any one municipality, district board, local boards or other local authority in the state by way of taxes on professions, trades, callings and employments shall not exceed 200 and 500 rupees per annum। Number 3, the power of the legislature of state to make laws as aforesaid with respect to taxes on professions, trades, callings and employments shall not be construed as limiting in any way the power of parliament to make laws with respect to taxes on income accruing from or rising out of professions, trades, callings and employments। तो अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 276 बताता है कि प्रवृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर, जो टैक्स है किस किस पे वसूला जाता है? वृत्तियों यानी वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। नंबर 1, अनुच्छेद 246 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के विधानमंडल के ऐसे करों से संबंधित कोई विधि जो उस राज्य के या उसमें किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के फायदे के लिए वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नियोजनों के संबंध में है, इस आधार पर अविधि मान्य नहीं होगी कि वे आय पर कर से संबंधित है। नंबर 2, राज्य को उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड
स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेह कुल रकम 2,500 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। नंबर 3, वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं, नियोजनों पर करों के संबंध में पूर्वोक्त रूप में विधियां बनाने की राज्य के विधानमंडल की शक्ति का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों से प्रोद्भूत या उद्भूत आय पर करों के संबंध में विधियां बनाने की संसद की शक्ति को किसी प्रकार सीमित करती है। अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति, इसको भी देख लेती हूँ। 277 आर्टिकल सेज अबाउट सेविंग्स, व्यावृत्ति, सेविंग्स के बारे में, जो बचत है उसके बारे में। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस और फीस which immediately before the commencement of this constitution were being lawfully levied by the government of any state or by any municipality or other local authority or body for the purposes of the state, municipality, district or other local area may notwithstanding that those taxes, duties, cesses or fees are mentioned in the union list continue to be levied and to be applied to the same purposes until provision to the contrary is made by parliament by law। क्या कहा जा रहा है 277 सेविंग्स, any taxes, duties, cesses or fees which immediately before the commencement of this constitution were being lawfully levied by the government of any state or by any municipality or other local authority or body for the purposes of the state, municipality, district or other local area may notwithstanding that those taxes, duties, cesses or fees are mentioned in the union list continue to be levied and to be applied to the same purposes until provision to the contrary is made by parliament by law। मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। हिंदी में क्या कहा जा रहा है? हिंदी में कहा जा रहा है कि 277 व्यावृत्ति, ऐसे कर, शुल्क, उपकर या फीसें जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्वक उद्ग्रहित की जा रही थी, इस बात के होते हुए भी कि वे कर, शुल्क, उपकर या फीसें संघ सूची में वर्णित हैं, तब तक उद्ग्रहित की जाती रहेंगी जब तक उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती रहेंगी जब तक संसद विधि द्वारा इनके प्रतिकूल उपबंध नहीं करती है। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं तब तक चलती रहेंगी जब तक संसद विधि द्वारा इनके विरुद्ध कोई उपबंध नहीं करती है, तब तक ये सब जारी रहेंगी, ये बात की जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका अपना ही चैनल है, ताकि लोगों तक ये संविधान की जागरूकता पहुँचे, ये वीडियोज़ पहुँचे तेज़ी से और लोग इनके बारे में सुने, जाने। थैंक यू। जय भीम।